Hello and welcome. Good evening, my dear students. Previous class we have discussed lesson number 15. We have completed from economic development, economic growth and features of developing economy. Now we will discuss about economic and non-economic activities. What are economic activities and what are non-economic activities? Economic activity is the process of we are investing some money and we are giving some service to somebody in business, trade, commerce, agriculture, industry, and in exchange we are getting some profit out of it, or in exchange we are getting some economic advantage out of it, then it is called as economic activity. उसका मतलब ये है कि अगर हमने कहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया या खुद मेहनत किया, बराबर, जैसे कि व्यवसाय किया, वाणिज्य व्यवसाय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, खेती में इन्वेस्टमेंट किया या व्यापार में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे हमको कोई इकोनॉमिकल प्रॉफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, ए टीचर टीचर्स द स्टूडेंट गेट्स मनी, ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट गेटिंग मनी, एंड ए फार्मर is investing money in his crop, a businessman investing money in business and gets profit, it is called as economic activity. बराबर. Then what is non-economic activity? Non-economic activity refers to that whereas we are giving service, investing money, and in return we are not getting profit. बराबर. For example, teacher teaches without money, doctor treats the patient without money, mother feeds milk the baby, government is giving service, making plantation in the cities. बराबर. तो these are known as non-economic activity. So economic activity क्या होता है? जहाँ पर हम कुछ इन्वेस्ट करते बदले में प्रॉफिट पाते, अगर प्रॉफिट नहीं पाते उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट कम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इट विल बी ऑल्सो नोन एज एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. भारत के लोग कौन सी सेक्टर में काम करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं. हाउ द इंडियन पीपल दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड इन वर्किंग डिफरेंट सेक्टर्स. सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इन आवर कंट्री, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज टर्टियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, most probably more than 60% people of our country are working in primary sector. Primary sector includes agriculture and agriculturally related activities like agriculture, farming, pisciculture, dairy farm, collection of forest goods, sericulture, apiculture, horticulture. बराबर. जहाँ पर हम लोगों ने मेहनत करते, परिश्रम करते, बराबर, that is known as primary sector. Next come secondary sector. Secondary sector starting from small scale industry up to medium scale industry and large scale or heavy industry. Different type of industrial activity that belong to secondary sector. Secondary sector में हम लोगों को एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा. इंडस्ट्री विच इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पिन टू जिगांटिक मशीन्स, factories, construction, electricity, gas, water supply, all these are included with secondary sector. Next come service sector. Service sector क्या होता है? जहाँ पर सर्विस मिलता है. All service giving units, education, health, transport, communication, banking, insurance, electricity, water supply, these are also belong to service sector. यानी कि हमको जहाँ पर सर्विस मिलता है या हम किसी सर्विस देते हैं, ये सेक्टर को बोलते हैं सर्विस सेक्टर. बराबर. इन टू द प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति में हमारा देश में पहले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते, लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, मैक्सिमम पीपल दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सो द नंबर ऑफ पीपल नाउ वर्किंग मोर देन एग्रीकल्चर सेक्टर्स in service sector and industrial sector or secondary sector. So this is all about structure of Indian economy. आपको क्वेश्चन ही भी ऐसा आएगा, what are the areas of Indian economy? तो structure of Indian economy equal to areas of Indian economy. तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस
और व्हाट इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इंक्लूड्स सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इंक्लूड्स सर्विस सेक्टर, ये सारे चीज़ हम लोगों को याद रख के हमको लिखना है। नेक्स्ट काम माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करना है। we are going to use what kind of things that we are using for production process. Most probably the factors of production are land, labor, capital and entrepreneurship. Land क्या है? जमीन। जमीन हमारा बहुत सारे काम आता है, बिना जमीन से हम कारखाना बसा नहीं सकते, मकान बना नहीं सकते। Land provides as agriculture, raw material for all industries, minerals, all the minerals we are collecting from land. एंड लैंड में हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, रोड बनता, रेलवे बनता है, कारखाना एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सो लैंड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। नेक्स्ट कम कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी। कैपिटल दो प्रकार है, मूवेबल कैपिटल एंड इमूवेबल कैपिटल, राइट। कैपिटल का मतलब मनी भी होता है। अभी एक ट्रैक्टर या ट्रक या मकान, सपोज हमारे पास एक ट्रैक्टर है या ट्रक है, सुबह गाड़ी निकलती है और शाम को जब आता है वो 10-15 हज़ार रुपया भाड़ा लेकर आता है, दैट इज ऑल्सो ए कैपिटल। हमारे पास मिक्सचर ग्राइंडर है, कंक्रीट मशीन, वो हम भाड़े में देते हैं, शाम को जो वापस आता है वो 4-5 हज़ार रुपया लेकर आता है। अगर मेरे पास एक प्लॉट है या 10 फ्लैट है कोई बिल्डिंग में, मैं उसको भाड़े में देता हूँ, उसमें से भी हमको पैसा मिलता। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल। और भी उसका एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम टाटा सेट को अमेरिकन गवर्नमेंट डिमांड किया कि मेरे को 200 ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए, बराबर। अभी अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है, तो टाटा, बिरला, रिलायंस, गोइंका, ये सब जो बड़े बड़े कंपनी है, सपोज फॉर एग्जांपल टाटा को अमेरिका बोला कि अब मेरे को आप 200 इंजीनियर दो। टाटा सेट एक एक इंजीनियर को 1,20,000 रुपया पगार देता महीने को। लेकिन अमेरिका जब टाटा सेट को, रतन टाटा को डिमांड किया, तो रतन टाटा ने बोला पर मंथ मेरे को 4 लाख रुपीस चाहिए पर इंजीनियर। तो अमेरिका ने बोला यस। अभी टाटा सेट 200 इंजीनियर को अमेरिका को भेजा, पर हेड 4 लाख रुपया वो महीने को लेगा, लेकिन देगा कितना? 1,20,000 देगा एक एक इंजीनियर को। सो टाटा सेट ये इंजीनियर्स का बाकी जो रेस्ट ऑफ मनी 2,80,000 रुपीज़ पर हेड उसको प्रॉफिट मिला। दिस इज ऑल्सो ए कैपिटल। सो मेन सम प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज कैपिटल। हम मकान को कैपिटल बोल सकते, हम प्लॉट को कैपिटल बोल सकते। प्लॉट में अगर एक महीना मेला लगेगा, लारी लगेगा, तो वहाँ पर पैसा कमाते हैं लोग, बराबर। ट्रक, ट्रैक्टर और बिजनेस करके भी हम पैसा जो कमाते हैं, मनी, रुपीस, नोट को भी कैपिटल बोलते हैं। और इसलिए मैंने आपको बोला मूवेबल कैपिटल, इमूवेबल कैपिटल, ऐसे कैपिटल दो प्रकार। लैंड और कैपिटल गया। अभी आ जाएगा लेबर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर आर डूइंग मेंटल वर्क लाइक ए पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, दे आर कॉल्ड एज स्किल्ड लेबरर्स। एंड अनस्किल्ड लेबर दोज हु आर डूइंग फिजिकल वर्क, जो मेहनत करते, बोझ उठाते हैं, पौड़ा मारते हैं, बराबर, ड्रेन खुदाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अनस्किल्ड लेबर। सो जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल स्टेट होता, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट में स्किल्ड लेबर एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर बोथ आर रिक्वायर्ड, राइट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल गया। नेक्स्ट काम एंटरप्रेन्योरशिप। आपको क्वेश्चन आएगा, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर कौन है? द पर्सन ही हु कोऑर्डिनेट्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप, बराबर। ये क्वेश्चन 2 मार्क में आता है माय डियर स्टूडेंट्स। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु कोऑर्डिनेट लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जिसको मालिक बोलते। एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक लैंग्वेज में ओनर को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट कम रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब each and every country in the world, they don't have sufficient amount of resource for which they have to depend upon other countries. So रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अभी 145 करोड़ पीपुल है, पॉपुलेशन।
अगर हम बात करेंगे 80 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, मल्टी व्हीलर्स आर वर्किंग, तो इसके लिए हम लोगों को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल ये सब की ज़रूरत पड़ता। लेकिन हमारा देश जितना कंज्यूम करता, सच अमाउंट इज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, फॉर विच वी आर डिपेंडिंग अपॉन अरबियन कंट्रीज, इराक, ईरान, कतर, ओमान, इजिप्ट, वेनेजुएला एंड अफ्रीकन कंट्रीज। बराबर, वी आर ब्रिंगिंग दिस फ्यूल और एनर्जी रिसोर्स, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल सब लाते हैं। लेकिन वो कंट्री में, अरबियन कंट्री, दे डोंट हैव राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइस, टी, कॉफ़ी, परफ्यूम, ऑल दीज थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। सो हम कुछ देते हैं और हम कुछ लाते हैं। बराबर, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड दे डोंट हैव enough sufficient resource for which they are exchanging the resources among one another. Human wants are unlimited. Immediately after fulfill of one desire, another desire happens. So priority must be given to important requirements, important desires. अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं, तो पहले खाने के लिए हम इंतज़ाम करेंगे। खाने के लिए है, मकान नहीं, मकान करेंगे, कपड़ा नहीं, कपड़ा करेंगे। बराबर, सिमिलरली आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ए पैच ऑफ लैंड, 1 एकड़ ज़मीन सपोज हमारे पास है। वो ज़मीन में गन्ना की खेती हो सकता, गेहूं भी हो सकता, टमाटर की खेती हो सकता, चावल की खेती भी हो सकता। बट एट ए टाइम 1 क्रॉप विल बी ग्रोन, नॉट मोर देन दैट। सो जो हमको बहुत ज़रूरी है, पहले हम उसको करेंगे। बराबर, whatever is required to us first of all, so we will have to fulfill that requirement. बराबर, so next come, this is about resource distribution. next come resource allocation. resource का मतलब संपदाएं। कोई भी कंट्री रिसोर्स को एलोकेशन करने के लिए विभिन्न प्रकार मेथड होता है। सो मेथड्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन हमारा देश में ऐसे तो टेक्स्ट बुक में बोला 2 है, लेकिन 3 है रिसोर्स एलोकेशन, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम and socialist system. But then the third one is mixed economic system. Market mechanism system, it is based on capitalist method. Consumers demand goods and commodities in the market, and the entrepreneur wants to fulfill their requirement, but under the condition. बराबर, कंडीशन क्या है कि कस्टमर का डिजायर को एंटरप्रेन्योर यानी ओनर या मालिक या बिजनेसमैन फुलफिल करेगा, बट वट एवर द मनी विल बी डिमांडेड बाय द एंटरप्रेन्योर, दैट विल बी गिवन बाय द कंज्यूमर्स। बराबर, इसको बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, नो रेस्ट्रिक्शन अपॉन मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। गवर्नमेंट विल टेक टैक्स। गवर्नमेंट ये बोलता है कि मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में फ्रीडम दे दिया गया एंटरप्रेन्योर को, तुम लोग प्रोडक्शन करो और मार्केट में अगर आपका ज़्यादातर सेल्स होता है तो करो, को मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मेरे को जितना टैक्स चाहिए वो टैक्स मेरे को दे देना। बराबर, इन दिस वे ये है रिगार्डिंग मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। इसमें जापान, अमेरिका, दीज 2 कंट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ मार्केट मैकेनिज्म system. In this system, in production and its related activity, profit at the center. Everybody running after getting more profit. Everybody invest their resources from where they are getting maximum profit. Barabar. So it is also called as middle way. It is also called as profit oriented system. It is called free market. Barabar. So government does not have any specific economic policy or does not play any role in this method. Competition plays a vital role. Competition क्यों होता? जब सरकार सबको फ्रीडम दे दिया तो everybody will try to satisfy the consumer. तो कैसे satisfy करेंगे? तो मार्केट में अभी बिस्किट हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, विभिन्न प्रकार वैरायटी का मिलता, बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं लोग। हमको जो पसंद लगता, विच इज चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ हम देखते हैं। हमको जो अच्छा लगता है, बिस्किट हो, टूथपेस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, साबुन हो, हम उसको खरीदते हैं। इट में बी कॉस्मेटिक, इट में बी मेडिसिन, इट में बी एडिबल आइटम, वॉट एवर इट में बी, जो हमको सस्ते में मिलता, अच्छा चीज़ मिलता, क्वालिटी है, बराबर, उसको हम खरीदते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम।
Because of this fast economic development of the countries take place, the competition control the whole market like an invisible hand. What are the features of market mechanism system? Ownership of resource of production is individual or private. यहाँ पर इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप होता है रिसोर्स पर प्रोडक्शन, बराबर. यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. Profit is kept at the center. Everybody investing or running after profit or investing their resource from where they get more profit. Consumer gets good opportunity of choice. यहाँ हम चूज करते हैं हमारा. The consumer choose their right choice in the market as freedom is given to them. इनको पूरा संपूर्ण आज़ादी दिया गया कि तुम कंज्यूमर्स तुम जो चाहते हो, तुम्हारा जो पसंद है चूज करके लो. Government interference is not there in this system. Distribution of resources is based on profit. हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट से कोई काम नहीं करता ये सिस्टम में, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट. एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन व्हाइल कीपिंग इन प्राइस मैकेनिज्म. एवरीबॉडी इन्वेस्ट देयर मनी फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट एज पर प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. व्हाट एडवांटेज वी आर गेटिंग फ्रॉम मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम. ये ऐसा मार्केट है, यहाँ 30 रुपया में चावल किलो मिलता है, 300 रुपया में भी चावल किलो मिलता है. कहने का मतलब ऑल क्लास एंड कैटेगरी पीपुल कैन सर्वाइव हियर, दे कैन लिव देयर लाइफ. यही मार्केट में लोग महीने को 5,000 कमाते, 20,000 कमाते, 50 लाख कमाते, 1 करोड़ रुपया भी कमाते हैं. तो एज पर देयर अर्निंग दे हैव टू चूज देयर राइट चॉइस what kind of goods commodities they will purchase and live their life. This is the most important facility or advantage in market system. Second one is resource of production are utilized to the greatest extent of efficiently. इसमें resources को ज़बरदस्त यूज किया जाता है. किसमें? मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में. abundant production may be done बिकॉज वी आर गेटिंग मच मोर प्रॉफिट, इसलिए प्रोडक्शन में कमी नहीं होता. मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम में सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है. एंड द न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस. जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ता है और न्यू एक्सप्लोरेशन, इनोवेटिव आइडियाज़, इन्वेंटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आर क्रिएटेड. कि अगर हम अगर ये कोई बिस्किट पैकेट या एक टेक्स्ट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड सोशल साइंस, सपोज ये प्रोडक्शन कॉस्ट हमको पड़ता है 25 रुपया और 50 रुपया में बेचते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा ये 25 रुपया जो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है, हाउ वी विल मेक इट बाई 20 रुपीज़, 20 रुपया कैसे पड़ेगा. इसके लिए नया नया इनोवेटिव आइडिया और नया नया टेक्नोलॉजी लाया जाता है. अभी सूरत मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अभी सब पुराना मशीनरी को हटाकर नया नया मशीनरी लाते हैं. पहले एक कारीगर 4-5 मशीन चलाता था, अभी 20 मशीन को एक कारीगर चलाता है बिकॉज ऑफ हाई टेक टेक्नोलॉजीज, बराबर. सो ये एक दिस इज ऑल्सो ए फैसिलिटी दैट वी गेट इन मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. क्वालिटी ऑफ थिंग इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन. हर कोई एंटरप्रेन्योर चाहते कि मैं, तो ये लोगों को क्या करना है, तो दे हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. इसीलिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर कम्पीटिंग टू वन अनदर टू प्रोवाइड गुड थिंग्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट कम लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम और डिसएडवांटेज. दिस सिस्टम हमने इतने सारे एडवांटेज के बारे में बात किया, डिसएडवांटेज भी है क्योंकि हर कोई चीज़ का मेरिट और डिमेरिट होता है. सो डिसएडवांटेज में इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट एट द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड. अभी ये मार्केट का एक डिमेरिट क्या है, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर उसको प्रोडक्शन करता, जिसमें कंफर्टेबल लग्जरियस आर्टिकल से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उसमें से वो सब कौन परचेज करेगा, अमीर लोग. अमीर लोगों का जो सामान है, जो चाहत, जो डिमांड, उसको फुलफिल किया ये मार्केट. इसमें गरीब लोगों का जो कंज्यूमर गुड्स नहीं हुआ, जिसके कारण गरीब लोग सफ़र होते हैं ये मार्केट में. इट इज़ ए टाइप ऑफ डिसएडवांटेज इन दिस मार्केट. द सेकेंड वन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी. यहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं,
तो मालिक लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन मनमानी करते हैं, बराबर। जैसे वैसे पैसा मार्केट में अगर हमारा अच्छा नाम बन गया तो वो लोग चला लेते हैं, जैसे भी एक्सप्लॉइटेशन होता है मार्केट में, बराबर। थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। हमारा देश में ज़्यादातर अभी भी ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे हो गया तो लिटरेट हो गए, खाली पढ़ना लिखना सिग्नेचर करना वो लिटरेट नहीं है। माइंड मस्ट बी मैच्योर्ड, दे हैव टू लिव देयर लाइफ इन ए ह्यूमन मैनर, बराबर। सो ज़्यादातर इनोसेंस, इग्नोरेंट, इलिटरेसी की वजह से लोग सफ़र करते हैं, और जो इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, उसको चीटिंग करना बहुत आसान होता है, और ये लोग इन लोगों को ट्रैप करते हैं, बराबर। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पारिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कम लोगों के हाथ में ज़्यादातर प्रॉपर्टी रह जाता, जो अमीर है वो अमीर बनता है, और जो गरीब है गरीब बन के ही रहता है। ये दूसरा चीज़ है। लास्ट वन इज देयर इज फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबरर्स। मोनोपोली क्या होता है, मनमानी करना। सपोज मैं एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे बाजू में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रहता है, मेरे को मैं जो साड़ी प्रोडक्शन करता हूँ वो भी वही साड़ी प्रोडक्शन करता, लेकिन मैं दिन को 1000 साड़ी प्रोडक्शन करता, वो 5000 साड़ी प्रोडक्शन करता। मेरे को एक साड़ी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया पड़ता, लेकिन मेरे बाजू में जो है उसको 75 रुपीज़ पड़ता प्रोडक्शन, क्योंकि उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी मेरा जो है पुराना टेक्नोलॉजी, इसलिए मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ता, तो उसको 25 रुपया कम पड़ता एक साड़ी में। इन दिस वे उसको 75 रुपीज़ वाला साड़ी को 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में बेचने से भी उसको नुकसान नहीं होगा। तो मेरे को क्या है, वो एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए तो जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी है, अच्छा मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला को एक्सप्लॉइट करता है। क्योंकि मेरे को जब प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ता, मैं 100 रुपीज़ में वो साड़ी को बेच नहीं सकता, जबकि उसको 75 रुपीज़ पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट, वो 100 रुपीज़ में बेचने से भी उसको नुकसान नहीं होगा। वो ऐसा क्यों करता, मैं बंद कर दूंगा, देन वो मोनोपोली चलाएगा वो एरिया में, बराबर। नेक्स्ट कम सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम ड्यू टू failure of market mechanism system or due to some demerits found in market mechanism system, socialist system came into existence. Socialist system is complete opposite of the market mechanism system. Countries like Russia, China, Bulgaria, Hungary, Romania, these countries have adopted socialist system. In a socialist system, the government take control of everything. Industry, land, irrigation, agriculture, banks, all the banks are nationalized. Everything is controlled by the government in a socialist system. There is no individual freedom. There is no economic right among the people. Whatever government decide for production, that is final. There will be no individual choice. मैं कैसे कपड़ा पहनूंगा, मैं कैसे खाना खाऊंगा, मैं कैसे मकान बनाऊंगा, आई विल नॉट डिसाइड इट, गवर्नमेंट डिसाइड्स इट। गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन एट ऑल इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। मोस्ट प्रोबेबली सोशलिस्ट सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय कम्युनिस्ट कंट्रीज। सो all decision planning to production, investment, resource distribution, production distribution are taken after keeping requirement of the society in mind. यहाँ पर क्या है, अमीर गरीब कुछ नहीं है, एक्चुअली ये एक अच्छा सिस्टम है। जो आदमी जिस काम का लायक है उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट सरकार करता है। अगर मैं एक इंजीनियर हूँ तो मेरे को इंजीनियर का फैसिलिटी मिलेगा, अगर मैं एक किसान हूँ तो मेरे को किसान का फैसिलिटी मिलेगा। एक किसान का बेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता, लेकिन एक डॉक्टर का या साइंटिस्ट का बच्चा अगर नालायक है तो रिश्वत देकर वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ के वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अभी क्या है, मार्केट सिस्टम में जिसके पास पैसा है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करके डिग्री हासिल कर लेते हैं, जबकि ये सोशलिस्ट कंट्री में नहीं है। अगर इफ़ आई एम वाइज एंड इंटेलिजेंस and if I am suitable for a definite work, then I will be proposed for that. Neither
नो, देयर इज नो चांस एट ऑल। इसलिए किसान का बेटा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकता अगर उसके दिमाग में नॉलेज है। लेकिन एक डॉक्टर का बेटा अगर मूर्ख है, नालायक है, तो वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, वो किसानगिरी करेगा, नहीं तो मजदूरी करेगा। ये सिस्टम होता है सोशलिस्ट सिस्टम में, बराबर। अभी हम देखेंगे इन द सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। इसमें प्रॉफिट नहीं चाहता सरकार, सोशल वेलफेयर, समाज में रहने वाले हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान खुशी से अपना ज़िंदगी जी सकता, कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। देयर इज नो क्वेश्चन नेवर अराइजेस फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। The responsibility to achieve the target of production decided by the state governed factories. Farming is also owned by the state. Labor are paid according to their ability. जो लेबर जैसे काम करता उसको, इसको ऑर्डर एंड मोटिवेशन सिस्टम भी बोलते हैं। जो लेबर जैसे काम करता उसको उसके हिसाब से पेमेंट मिलता है। अगर मैंने चीटिंग किया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, अगर मैं अच्छा काम किया तो मेरे को रिवार्ड मिलेगा। इसीलिए उसको बोलते ऑर्डर एंड मोटिवेशन सिस्टम। ऑर्डर कब होगा? जब हम चीटिंग करेंगे, जब हम एज ए गुड सिटीजन, देश का भलाई के लिए हम लोग क्रिएटिव माइंड में अपना काम करते हैं, स्व इच्छा से काम करते हैं, बराबर, हम देश प्रेमी के हिसाब से काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमको सरकार हमको हायर प्रमोशन देगा, हायर सैलरी देगा और हमको प्रेस्टीज मिलेगा और अवार्ड भी मिलेगा। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, ऑल रिसोर्स आर ओन्ड बाय द स्टेट। सब संपत्ति का मालिक राज्य सरकार, स्टेट होता। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। रदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। लेबरर्स आर पेड वेज इन रिटर्न टू वर्क। जो लेबर जैसे काम करता, आपको मैंने बताया, उसको उस तरह ट्रीटमेंट किया जाता। अभी हम देखेंगे सोशलिस्ट सिस्टम का एडवांटेज, बेनिफिट क्या है। नंबर 1, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑन इम्पोर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम आर नॉट प्रोड्यूस्ड। सरकार एम करेगा समाज को वर्तमान क्या चीज़ की ज़रूरत है एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल फुलफिल इट, बराबर। लग्जरियस और कंफर्टेबल कमोडिटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड आर प्रोहिबिटेड, बराबर। सेकंड, इज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इज नॉट देयर। मार्केट सिस्टम में क्या होता था, प्रॉफिट पाने के लिए ज़बरदस्त रिसोर्स खर्चा करके ज़बरदस्त प्रोडक्शन करते थे, गोदाम में पड़ के ख़राब भी होता था, जब बेचा नहीं जाएगा तो ख़राब होगा। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में क्या करता है सरकार, जितनी ज़रूरी, जहाँ कहाँ पर ज़रूरी, कितना ज़रूरी, उतना ही सरकार प्रोडक्शन करता है। एंड थर्ड पॉइंट, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। यहाँ पर कोई, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इसलिए इसमें डिस्पैरिटी नहीं है। आप इंजीनियर है, आपको जो जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगा। मैं किसान हूँ, ऐसा कि मार्केट सिस्टम में भूखा मरते हैं, दिन रात काम करने से भी लेबर क्लास लोग भूखा मरते हैं, बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय सम ग्रुप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लेबर, अभी यहाँ पर मार्केट सिस्टम में सरकार 500 रुपया फिक्स किया लेबर चार्ज, लेकिन लोग 150 रुपया 200 रुपया में ग्रामीण इलाका में काम करवाते हैं। अगर 500 रुपया लेबर को मिलता तो उसको कोई अभाव नहीं होता, लेकिन वो होता नहीं। यहाँ पर चीटिंग होता है, कोई पूछने वाला समझने वाला नहीं, क्योंकि देयर इज इन मार्केट सिस्टम देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम में वो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भूखा नहीं मरता है, बराबर। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। यहाँ कोई भी कंज्यूमर, क्योंकि सरकार प्रोडक्शन जो करेगा एडिबल आइटम, उसका फिक्स्ड रेट है, ना कोई बढ़ा कर चढ़ा कर भेजेगा, ना कोई कम रेट में भेजेगा, बराबर। इसलिए यहाँ सरकार सब जो करता है एकदम इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल और पब्लिक। नेक्स्ट कम लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। लिमिटेशन एटले डिसएडवांटेज। Socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitation। ये लाया गया था, इसका भी डिसएडवांटेज, मैंने आपको पहले से भी बोला था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होता है सब में, राइट। तो इसमें भी डिसएडवांटेज है। एज द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यहाँ क्या है, लिमिटेड हो जाता है। सरकार, यहाँ पर लोगों का एनकरेजमेंट बढ़ता नहीं। क्या करेंगे यार, सरकार के लिए काम करना पड़ता है,
कुछ कितना भी करो तो जितना मिलता उतना ही मिलेगा, कोई रिवार्ड नहीं है, हमको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं है, हमको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, इंडिविजुअल राइट नहीं है, चॉइस नहीं है हमारा इसमें, जो दिया उसको खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, बराबर। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंटेस्ट एंड रिसर्च, इसमें कंपटीशन नहीं होता। मार्केट सिस्टम में कंपटीशन होता तो नया नया चीज़, इनोवेटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है। देर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, व्यक्ति का आज़ादी नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब व्यक्ति का आज़ादी यहाँ पर नहीं है, आप अपना मर्जी के ज़िंदगी जी नहीं सकते, समझे। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देर इज फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर सरकार हर एक चीज़ में इंटरफेयर करता है, इसलिए गवर्नमेंट को लोग डरते हैं सब, क्योंकि गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी मस्ट हैव टू मैनेज देयर लिव देयर लाइफ। नेक्स्ट कम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेरिट पॉइंट्स दोज कलेक्टेड फ्रॉम बोथ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम, बराबर। सो in this system, mixed economy is such a type of economic system in which public and private sector coexist and both the sector do not work as competitor. They are not competitor but they are complementary to each other. Public and private sector coexist to one another. एक दूसरे के साथ जोड़ जाता है। यहाँ पर मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों सिस्टम का जो मेरिट पॉइंट है, गुड पॉइंट, गुड फीचर्स को कलेक्ट किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए, क्योंकि दोनों सिस्टम में हम लोग फॉल्ट देखा, दोनों सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेज दिखा। सो द मिक्स्ड इकोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। द मिक्स्ड इकोनॉमी इज नाउअडेज प्रिवेलिंग इन इंडिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। पहले बार ये तीनों कंट्री में ये चालू हुआ, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इंडिया। मिक्स्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। आप देखो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट का भी है, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट का भी है। सो इसलिए कहा गया पब्लिक एंड प्राइवेट कोएग्जिस्ट टू वन अनदर, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर बट दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे का साथ देता है। It is due to effort of both the system, any kind of critical work that come into easy, कोई भी जटिल काम होता है, क्रिटिकल काम होता है, वो इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है जब दोनों मिल जाता है। कहीं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर अकेला सब कुछ कर नहीं सकता, तब वो गवर्नमेंट का मदद लेता। कभी कभी गवर्नमेंट भी सब काम मैनेज नहीं कर पाएगा। अभी सूरत सिटी में 1000 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अगर हम लोग सब गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम डिपेंडेंट होते तो इतने सारे बच्चों को क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा सकता? इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल ओपन किया गया। सो द प्राइवेट स्कूल्स आर टेकिंग चार्ज ऑफ एजुकेटिंग डिफरेंट मीडियम्स, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, ओडिया मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ स्कूल आर ओपनड इन सूरत। मैंने सूरत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, बराबर। सो इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, सॉरी अभी हम देखेंगे देर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, व्हाइल बेसिक की एरियाज लाइक हेवी इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन आर ओन्ड बाय द स्टेट। कोई कोई इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन होता है, कोई कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहता है। इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, गवर्नमेंट हैज लेस कंट्रोल इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेस हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग। यहाँ पर क्या है, कंफर्टेबल लग्जरियस गुड्स भी होता है, और जो चीज़ अमीर लोगों का चीज़, बराबर, तो सरकार उसके ऊपर हैवी टैक्स डालता है। अभी भारत में कार कंपनी है, बाहर इंडियन कार मिलता है, लेकिन लोग फॉरेन कंट्री से भी कार बोलते लाने के लिए, उनको आज़ादी है फॉरेन कंट्री का कार चलाने के लिए, लेकिन सरकार इन लोगों को टैक्स भी उतना एक्सप्लॉइट करके लेता है। सरकार ऐसे बोलता है कि भारत में कार मिलता है तो तुम भारत का क्यों नहीं खरीदते, अगर तुमको विदेशी कार खरीदना है तो तुमको उसके मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक्स हो, साबुन हो, तेल हो, मेडिसिन हो, विभिन्न प्रकार चीज़ वस्तु
हम चॉइस करते, इसमें मार्केट सिस्टम भी है और सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों का गुड पॉइंट को लेकर मैंने आपको बताया मिक्स्ड इकोनॉमी आया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑल टाइप ऑफ राइट आर गिवन, बराबर, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप लग्जरियस और कंफर्टेबल आर्टिकल्स आपको खरीदना होता है, आप विदेशी सामान को ज़्यादा चॉइस करते, तो आपको उसी तरह आपको टैक्स देना पड़ेगा। We so far studied about market system, socialist system, mixed economic system are the deciding factor of economic decision and distribution of resource. There is no country in the world today. वर्तमान स्थिति में दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं जिसके अंदर ये दोनों सिस्टम नहीं है। तो almost all the countries of the world now they have most probably, I cannot say 100%, most probably countries of the world they are preferring mixed economic system. Market system witness indulgence of planning element and state interference, while socialist system witness economic relaxation and economic liberalization. अभी ये सिस्टम में मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, लेकिन उसका डिमेरिट को इतना पकड़ा नहीं जाता है। ये ऐसे तो हम बात करेंगे तो हर कोई चीज़ का मेरिट और डिमेरिट है, बराबर। नो मैन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, कहावत है। सो मेरिट डिमेरिट तो हर कोई चीज़ में होता, लेकिन ये ज़्यादा प्रिफरेबल एंड इफेक्टिव है कौन? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। बट डिमेरिट्स आर आल्सो विटनेस्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, इसमें डिमेरिट क्या है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development. These are the limitation in the mixed economic system. My dear students, हम लोग उससे पहले में पढ़े थे और in this way lesson number 15 is completed. I hope you might have understand it properly, and I request you to share my video and like it and try to increase the view. Good evening.